4 करोड़ की मज़राती कार, 2.5 करोड़ की रेंज रोवर, 16 लाख की BMW बाइक, 60 करोड़ की प्रॉपर्टी। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर था जिसने चांद पर लूना प्रॉपर्टी के थ्रू पीस ऑफ लैंड खरीद रखा था। लेकिन इन सब के ऊपर डिप्रेशन भारी पड़ा और बंदा फांसी लगा के ख़त्म हो गया। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर 14 जून को सुसाइड कर ली। ये बताया जाता है कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे। ये फिल्म देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इतने खुशमिजाज सुशांत एक दिन इसी फ्लैट में सुसाइड कर लेंगे। आइए दिखाते हैं एक झलक। Getting this house. I was shooting for a film in Budapest, and I saw the video from there, and from there I decided to get this house. And it was really waiting to get here to actually experience being in this house. So guys, this is my living room. So I define my living room as a time traveling room because there are different stories here, condensed in different forms, talking about different history, future, everything. These pictures here are very interesting, fascinating, ancient pictures. And if you look closely into any other picture, it actually tells you a completely old, fascinating story. Guys, let me take you to a room where I actually think. Come. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ. This is the study table and I like yellow. I love yellow. And that's why I wanted my study table to be yellow. And by the way, this is my time machine. This is the telescope called Meade 600. And you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. फज है जो मैं कैसा भी रहूं, वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ. I remember when I was in like 3rd or 4th grade, and we used to get these miniature cars in Noodles Man, and I got this Maserati, so I wanted to buy that car, and finally got that car. So yeah, same color, blue. Well, it's still the miniature is still with me, and it still is very precious. So guys, let me take you over the moon, both literally and metaphorically. Are you ready? Those are the pictures from NASA, actually. So this is when I visited. I got myself a uniform, by the way. I always wanted to be an astronaut, and then I talked myself into becoming a pilot. Then I said, okay, engineer. And then I was confused, so I thought that let's be an actor and be everything. So this is the first dream. So one thing that I always dreamt to have at my place was a projector. Everything that I really like watching, playing, so I always wanted to buy this, and I got myself this. This घर, जैसे when I was thinking of doing the interior design of this place, so it was a mix of everything. So it wasn't to follow one, अच्छा इस तरीके का घर होना चाहिए, ऐसा pattern follow करना है. जिस तरीके से मेरे दिमाग में thoughts आते रहते हैं, if you look around, you get a feel of it. The kind of concoction is there in my mind. It's out there because it's just nothing, but yeah, it also everything. इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुगाड़ से बनी हैं, बहुत पुरानी हैं और जोड़ के तोड़ के बनाई गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जो, जैसे मैं खुद भी, मेरा करियर भी बड़ा जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ.
उनकी जिंदादिली को देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि वो डिप्रेशन में होंगे और एक दिन सुसाइड कर लेंगे। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन और आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड राइवलरी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये इनडायरेक्ट मर्डर है, जिसमें करण जौहर, आलिया भट्ट, एकता कपूर और सलमान खान के नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। आप गैलेक्सी की बात करते हैं, आप टाइम मशीन की बात करते हैं, आप स्टार्स की बात करते हैं, मून पर रहने की बात करते हैं, नासा पर आप जा चुके हैं। कितनी बड़ी बड़ी लाखों बातें, लेकिन इन बातों का क्या फ़ायदा? जो इंसान अपने दिमाग को नहीं पढ़ पाया, अपने दिमाग को नहीं समझ पाया। वाकई सुशांत, आप बहुत इमेच्योर निकले। लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रेस क्यों ना हो, लेकिन खुदकुशी उसका सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जीवन बहुत बड़ी नेमत है और हम इसको यूं ही गवा देते हैं, इसको नहीं संभाल पाते हैं। कोई इम्तिहान में नंबर कम आने पर खुदकुशी करता है, तो कोई तनाव के चलते। क्या इतनी सस्ती है हमारी ज़िंदगी? शायद नहीं। बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। आराम से, सुकून से ज़िंदगी के हर पहलू को देखिए। आप पाएंगे कि आप इसको ख़त्म करने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हैं, फिर सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।